So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss a very, very important topic, and that is G20 Summit, which actually happened day before yesterday and yesterday. So on 18th and 19th November, we have seen G20 Summit, and this is a very, very important summit from the exam point of view because exam is very near, and of course, they can ask this question from this topic. So if I'm audible, visible, everything is fine, please write yes in the comments. So that we can start our session. Am I audible? So G20 Summit के बारे में डिस्कशन करेंगे. उससे पहले last class में in yesterday class, which we are doing a revision series, I had given you 3 homework. Montreux record में कौन कौन से साइट है इंडिया के, फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया और फर्स्ट रामसार साइट. So I have got one right answer, and the right answer to this actually question to answer is Montreux record में 2 साइट है ना, केरोदो नेशनल पार्क राजस्थान एंड लोकतक मणिपुर, और छिलका लेक को रिमूव कर दिया गया. अर्लियर इट वाज आल्सो पार्ट ऑफ मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड. दूसरा ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज केबल लामजाओ इन मणिपुर, लोकतक लेक में है ना. फर्स्ट रामसार साइट इन्वॉल्व वाज कोबर्ग ऑस्ट्रेलिया, एंड इन इंडिया आई वाज आस्किंग, सो छिलका लेक. वेरी गुड, नमो हैड आंसर्ड मी करेक्टली, वेरी गुड. और ये सब का आंसर जो है इस क्लास में अवेलेबल है. सो दोज हु हैव वॉच्ड नॉट वॉच्ड रामसार साइट्स क्लास, प्लीज गो एंड वॉच इट. ठीक है. So Ramsar sites, career launcher, law interest when you search it. ठीक है. So you will get to know. ठीक है. वर्ल्ड लेवल का उतना नहीं याद रखना रहा. फर्स्ट रामसार साइट इंडिया का याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. So just you should be concerned about that. Okay. So ये वाला रामसार साइट्स पर वीडियो है. I have discussed about World Wetland Day, when Ramsar site was signed, and on currently how many Ramsar sites are there in India. So go and watch it. That would be very, very beneficial. Okay. Let's begin. But before moving on, today we'll be having this session. Please do join it at 8 p.m. आज इसी YouTube channel पर we'll be having this session. ठीक है. If you have any doubt, ठीक है, you can ask in this live class. ठीक है. आप को कोई issue है, नहीं समझ में आ रहा, कुछ problems है, you can ask this whatever the problem you have in today's 8 p.m. class. It is better to join live so that you can ask question. Otherwise, है ना. So that is what you should be doing. So let's begin with today's G20 class without wasting our time. I think everything is fine. आवाज clear है, everything is fine, audio, video is visible, everything, hopefully. So let us begin with today's question. I'll be discussing G20 previous year question also, because we have seen last year CLAT asking questions from G20. ठीक है. So I'll be discussing some PYQs also, that so that you will get an idea कि इस तरह के questions आ रहा है. ठीक है. Okay. How many sovereign nations are a part of G20 group excluding regional groupings? Do a video on Indus Valley civilization. अच्छा, देखता हूँ वीर शर्मा, if I have time I will try to arrange. How many sovereign nations, कितने G20 में कितने मुल्क पार्टिसिपेट करते हैं रीजनल ग्रुपिंग्स को एक्सक्लूड कर गया? मास्किंग, यस, वेरी गुड. धरणी, मिशिका, मुक्ति, पवित्र, दिल सिंह, भावना, बहुत से लोग आंसर किया. गौरवी, प्रार्थना, दिव्यांश, ऑल राइट. 19 ग्रुप्स. So we are having total 19 groups, and there are 19 countries plus there are 2 ग्रुप्स. विच आर दोस 2 ग्रुप्स? आपको बताइए. G20 में 19 कंट्री है और 2 इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है. व्हाट आर द नेम ऑफ दोस 2 ग्रुपिंग्स? यस मिशिका, वेरी गुड. सो एक्चुअली यूरोपियन यूनियन है और अफ्रीकन यूनियन, एंड लास्ट ईयर वी हैड सीन, है ना. सो दिस गेटिंग एडेड, सो दिस यू शुड बी नोइंग अबाउट इट, है ना. नाउ yes, very good, Mishika, Dharani, Del Singh, Pavitra. Now please answer this question. Which of the following grouping became a part of G20 last year? Last year means last year we had seen G20 summit happening where? तो 2023 वाला G20 summit हुआ था, कहां हुआ था वो? Which location? Yes, so D is the right answer. We are talking about, yes, Dharani, Pavitra, Mishika, Ditya, Nandini, Mishika, Del Singh. Great. So basically African Union got added last year. और 2023 में समिट कहां हुआ था? न्यू दिल्ली में. कहां पर? लाइक आई एग्री दैट न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है, पर वेयर इन न्यू दिल्ली? उस बिल्डिंग का नाम क्या है? भारत मंडपम. यस मुक्ति शर्मा, वेरी गुड. यस गौरवी. अच्छा, एक चीज पूछे, भारत मंडपम के सामने एक मूर्ति है. सो यू विल फाइंड अ स्टैचू ऑन द फ्रंट साइड ऑफ भारत मंडपम. व्हाट इज दैट स्टैचू? कोई बता सकता है? हाँ, भारत मंडपम ये मिलेगा आपको प्रगति मैदान में. अफ्रीकन यूनियन बिकम्स परमानेंट मेंबर, है ना.
सो सितंबर लास्ट ईयर के न्यूज आप देख सकते हो, मोदी जी से मुलाकात कर रहे, आई मीन हगिंग अफ्रीकन यूनियन चीफ, है ना। तो ये काफी मशहूर हुआ था। एट दैट टाइम द चीफ ऑफ अफ्रीकन यूनियन वाज अज़ैले असोमानी। यस, भारत मंडपम के सामने जो है वो नटराज, यस धरणी, वेरी गुड नंदनी, पवित्र नाम है, यू आर राइट। सो नटराज फ्रॉम द चोला एम्पायर, है ना, यू विल फाइंड द द स्कल्पचर, ठीक है। सो कोई ये बता सकता है कि करंट अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन या चेयरमैन कौन है? एनीवन? I'll be very happy if you tell me. Okay, so current African Union chief is Muhammad Ould Ghazouani. Okay, so this you should remember it. He's a chairperson of African Union. And can you please tell me where is the headquarter of African Union and how many members are there? इसलिए पता होना चाहिए because African Union is a part of G20 and India was instrumental in helping African Union getting a part of G20. ठीक है, so India का भी रोल था of course because we were the head, we were the presiding the G20, तो of course, तो इसीलिए हाँ, very good, मिशिका ने आंसर किया है, great. And headquarter of African Union, yes, Veer Sharma and Del Singh are saying Addis Ababa, and members 55, yes, Veer Sharma, Nandini, great, मिशिका, हाँ, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ, दिस इज इंडिया, दिस इज अफ्रीका, और अफ्रीका में यहाँ पे इथियोपिया एक जगह है, ठीक है, दिस इज इथियोपिया एंड हियर यू विल फाइंड अदिस अबाबा। इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिप्लोमेटिक कैपिटल ऑफ अफ्रीका, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यस, दिव्यांश, रितिका, यू आर राइट। एंड करेंटली वी आर हैविंग, ये इनका एंथेम वगैरह होता है, ठीक है, एंड करेंटली वी आर हैविंग 55 कंट्रीज मेंबर्स अफ्रीकन यूनियन। यस, रितिका, नामिया, दिव्यांश, प्रार्थना, यू आर राइट, मिशिका, ठीक है। सो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द G20 कंट्रीज की मेंबर्स के बारे में, बिकॉज इससे क्वेश्चन आया है और आता भी है डिफरेंट एग्जाम्स में। सो डू नॉट से कि सर कैसे याद होगा। सो इफ यू सी देयर आर टू, हियर इज अफ्रीकन यूनियन, हियर इज यूरोपियन यूनियन एंड रेस्ट आर 19 कंट्रीज, ठीक है, अगर आप देखोगे। So here are actually Brazil, which is host this year, Argentina, Australia, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Republic of Korea means South Korea we are saying, ठीक है, then Russia, Saudi Arab, South Africa, Turkey, now called as Turkey, United Kingdom and USA. So these are 19 countries plus 2 groupings. पहले एक्चुअली G20 इसलिए कहते थे कि 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन था, अब अफ्रीकन यूनियन ऐड हो गया, बट स्टिल दे आर कॉलिंग इट एज G20। हालांकि इसको 19 + 1 + 1 21 होना चाहिए, बट दे आर कॉलिंग इट एज G20। सो वी बिलीव दैट एक्चुअली मतलब जो है इट इज G20, ठीक है। हाँ, सारे क्वाड मेंबर्स अगर आप गौर से देखोगे, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएस है और इंडिया है, ये 4 है ना। सो ऑल 4 क्वाड मेंबर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस, ठीक है। ओके, सो लेट अस मूव ऑन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर द रेड वंस आर एक्चुअली G20 मेंबर कंट्रीज। बाकी जैसे ये ग्रीन वाला है ना, ये एज अफ्रीकन यूनियन रिप्रेजेंटेड होता है, लेकिन साउथ अफ्रीका सेपरेटली रिप्रेजेंट भी होता है, ठीक है। आर यू एबल टू सी? सिमिलरली यूरोपियन यूनियन की बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो जो रेड वंस हैं वो सेपरेटली रिप्रेजेंट होते हैं, और बाकी जो है एज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, जो पर्पल वाले एज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन दे गेट रिप्रेजेंटेड, ठीक है। तो कहीं कहीं ओवरलैपिंग भी होता है, जैसे साउथ अफ्रीका है, ये अफ्रीकन यूनियन भी प्रेजेंट होता है और साउथ अफ्रीका अलग से भी, ठीक है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे देखोगे फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, यूके है, दे आर सेपरेटली गेटिंग रिप्रेजेंटेड इवन इफ दे आर पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, बट दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटेड सेपरेटली। एक चीज और बताना चाहिए, येलो कलर का देख रहे हो, स्पेन, ये मेंबर नहीं है लेकिन इनको परमानेंटली इनवाइट किया जाता है, मतलब एक तरह से गेस्ट रहते हैं हमेशा। ये भी मैंने देखा किसी एग्जाम में पूछते हुए कि which of the following is a guest or invitee of G20 always, ठीक है। तो स्पेन रहता है, हमेशा इनवाइट किया था, although it is not a member, तो भी बुलाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा because we have seen questions like this। and एक चीज और है, अफ्रीकन यूनियन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, बट यूरोपियन यूनियन के बारे में आप इसमें जाके देख लेना, वी हैव डन अ क्लास, और यूरोपियन यूनियन इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, so because it comes in the news again and again। So I would suggest best please search करो ये YouTube पे all about European Union career launcher law interest, you will get this video, go and watch it। अगर टाइम कम है तो 2x पे या 1.5x पे देख लेना, ठीक है। Okay, let us move on to the next question। हाँ, एलेट में क्वेश्चन आया था वो ये स्पेन वाला, यस, जयवर्धन राठौर,
दैट इज व्हाई आई वाज एक्सप्लेनिंग, ठीक है, कि कौन सा मेंबर, इस तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे ये क्वेश्चन एक क्लैट 2024 का क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर आया था, ठीक है। Which of the following is not a member of G20? Be careful when an exam G20 जब भी नॉट वगैरह रहे तो ख्याल रखिएगा। यस, पीपल आर सेइंग इजिप्ट, वेरी गुड। देखो अब आप, मैंने आपको चूंकि अभी जस्ट बताया था कि अफ्रीका में इंटायर अफ्रीकन यूनियन इज देयर ऑन साउथ अफ्रीका इज सेपरेटली रिप्रेजेंटेड, ठीक है, लेकिन इजिप्ट, हाँ यस देव शर्मा, वेरी गुड, हाँ ए इज द राइट आंसर। अभी मैंने आपको दिखाया था, देखो इजिप्ट यहाँ पर है, ये वाला इजिप्ट है, ठीक है। तो अफ्रीका में साउथ अफ्रीका सिर्फ जो वो सेपरेटली रिप्रेजेंटेड होता है, बाकी सारे जो हैं वो अफ्रीकन यूनियन में रिप्रेजेंटेड होते हैं, ठीक है। और इनमें कुछ इंपॉर्टेंट फेमस दिखा, जैसे ये इंडिया है, ये तो पता होगा, ये सऊदी अरब है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडोनेशिया है, चाइना है, रशिया है, साउथ कोरिया है, ठीक है, देन जापान है। मैप से याद हो जाता है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, मैक्सिको है, यूएसए है, कनाडा है, ठीक है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, देन here is टर्की, ठीक है। So this is how you can remember it with the help of map because it is slightly easy, ठीक है, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। और इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, so you have to be careful, maybe they can again repeat it। और एलेट में भी लास्ट ईयर इस तरह का सिमिलर टाइप क्वेश्चन पूछे थे, ये कौन सा मेंबर नहीं है एंड ऑल। इंडिविजुअल कंट्रीज ऑफ यूरोप अलग से रिप्रेजेंट होते हैं धृति, उनको अलग से काउंट किया जाता है, ठीक है, मींस दे सेंड द डेलीगेट सेपरेटली। ओके लेट्स मूव ऑन। तो जो 19 कंट्रीज हैं, 19 प्लस अफ्रीकन यूनियन प्लस यूरोपियन यूनियन, तो ये 19 में वो आते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। हाँ जी, some people are saying B, some are saying C. I'm not able to understand why people are saying C. ये तो क्लियर होना चाहिए। रियो डी जेनेरो, ब्राजीलिया इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील, बट यहां नहीं हुआ था समिट G20। Be careful, it happened in Rio de Janeiro. Yes, C is the right answer. Most of the people are writing C. और रियो डी जेनेरो में एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट हुई थी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसका नाम क्या है बताइए तो। There is India, this is Brazil, ये साउथ अमेरिका में लाई करता है, इट लाइज इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अच्छा, आपको ब्राजील न्यूज में पता है क्या क्या पूछेंगे, इसका कैपिटल पूछ देंगे, इसकी करेंसी पूछेंगे, कि प्रेसिडेंट का नाम पूछेंगे, ठीक है, ऐसा पूछना शुरू कर देंगे। तो देयर इज रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992, हाँ उसको कहते हैं क्या, यूएनसीईडी, यस वी शर्मा, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, बहुत बहुत फेमस है। अर्थ समिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव डन अ सेशन हियर। अर्थ समिट के बारे में मैंने इस क्लास में पूरा डिटेल बताया है। अर्थ समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जस्ट सर्च दिस, इसको सर्च करना है यूट्यूब पर और ये वीडियो देख लीजिएगा प्लीज, है ना। सो एक्चुअली लेट अस टॉक अबाउट, देखो अब क्या है कि ब्राजील के बारे में पढ़ लीजिएगा, कैपिटल, करेंसी और प्रेसिडेंट, ठीक है। आई बिलीव दैट यू वुड स्टडी इट, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज व्हाट वाज द थीम ऑफ G20 समिट दैट हैपेंड इन दिल्ली इन 2023। जो लास्ट ईयर G20 समिट दिल्ली में हुआ था उसका थीम क्या था, ब्राजीलियन रियल करेंसी, यस नंदी, वेरी गुड। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट एंड इट वाज टेकन फ्रॉम वेयर, नॉट मुंडक उपनिषद, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, है ना, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, है ना, महाउपनिषद, राइट, वीर शर्मा नंदनी ग्रेट, हाँ ही इज द राइट आंसर, हाँ यस तरनी, हाँ। देखो होता क्या है, इसका मतलब वासुदेव कुंडबकम का मतलब होता है द एंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली, है ना, कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड ऑर्डर ऐसे भी लिखते हैं, पॉलिटन वर्ल्ड ऑर्डर, सो दे राइट लाइक दिस, ओके। तो लास्ट ईयर 9 to 10 सितंबर 2023 में हुआ था। दूसरी बात है, देखो ये भारत मंडपा में, और आप सामने देख सकते हो, ये जो है ना, दिस इज एक्चुअली द स्टैचू ऑफ नटराज, है ना। ये तो धर्मस्थल जो है सुप्रीम कोर्ट मोटो, यस मिशिगा, राइट, दिस इज द मोटो ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये एलेट में पूछा है। सम पीपल आर सेइंग कि सर एक बार क्वेश्चन आ चुका है तो रिपीट नहीं करेगा। आई डोंट नो व्हाई दिस टेंडेंसी इज, ठीक है, मैं पेड क्लास में कई बार बताता भी हूं। देखो होता क्या है, आप ये मत सभी सोच के आना कि पीवाईक्यू आ गया तो अब नहीं आएगा। अगर आप एलेट में देखोगे तो एलेट तो बहुत रिपीट करता है पीवाईक्यूज, ठीक है, इवन क्लैट का पीवाईक्यू भी रिपीट करते हैं इवन। तो आप अभी तक नहीं रिपीट किया, बट यू शुड रीड इट, देयर इज नो गारंटी। अगर आ गया, कॉपी किया होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो फिर आपको लगेगा कि आता हुआ क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। सो डो नॉट थिंक कि अगर एक बार आ गया तो नहीं आएगा, no one knows this. Now this year what is the theme of G20 summit that happened in Rio this year? ये तो पता होना चाहिए पक्का।
यस, दल सिंह, नंदरी, वीर, धरणी, राम्या, भावना, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया। बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। जस्ट वर्ल्ड मतलब इंसाफ की जगह, जस्टिस से बना है। देयर शुड बी जस्टिस, इंसाफ एवरीवेयर। सस्टेनेबल प्लैनेट मींस our planet should be such, our utilization of resource, oil and natural gas is such so that it should harm the environment least, sustainable hona chahiye, hai na? Yes, so B is the right answer to this question, and here it is the motto or theme जो भी आप कह लो, ठीक है, उनकी पोर्चुगीज लैंग्वेज में, बट ये आपको लैंग्वेज पता होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, मैं बता देता हूं क्यों, ठीक है। First you answer it, then I will explain. ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, एंड मैंने इसलिए दिया है कि आई बिलीव कि यू शुड बी नोइंग इट, ठीक है। हाँ, मेजॉरिटी आर सेइंग ए। G20 इज अ फोरम फॉर व्हाट? तो ओरिजिनल जो पर्पस था G20 को यही था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इट इज ट्रू, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन ही इसका काम था, ठीक है। लेकिन एंड दिस वाज द आंसर गिवन बाय द क्लैट, बट आई पर्सनली डिसएग्री। अगर आप मेरे से पूछोगे, आई शुड बी सेइंग डी। अब बोलोगे सर क्यों? ओरिजिनल मकसद ये था, बट नाउ डेज वी आर डिस्कसिंग एनवायरमेंट, वी आर डिस्कसिंग पीस। अभी देखो, इस साल भी, लास्ट ईयर दोनों दिल्ली डिक्लेरेशन में भी, जो लास्ट ईयर दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था उसमें भी वॉर की बात की गई थी, पीस की बात में, और जो ब्राजीलियन डिक्लेरेशन आई विल शो टुडे, दैट आल्सो टॉक्ड अबाउट कि वॉर नहीं होना चाहिए, और मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वगैरह की बात की गई थी, दिल्ली डिक्लेरेशन में मेंशन था। ओके, तो रियलिटी ये है कि अगर क्वेश्चन बनाने वाले ने दिल्ली डिक्लेरेशन पढ़ा होता प्रॉपरली, देन दे शुड हैव मार्क्ड डी, बिकॉज द दिल्ली डिक्लेरेशन लास्ट ईयर टॉक्ड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे थे, मैंने खुद पढ़ा, मैंने बच्चों को पढ़ाया भी था, इनफैक्ट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सब की बात हुई थी। अर्लियर ओरिजिनल आइडिया ये था, अगर ये लिख रहे थे ओरिजिनली व्हाट वाज दिस मेन, तो आपका आंसर ए होता। बट इफ यू आस्क मी पर्सनली, द आंसर शुड हैव बीन डी, बट उन्होंने ए निकाला था, ठीक है। और जनरली ऑल ऑफ द अबव का चांसेस ऐसे भी ज्यादा होता है, बट दैट इज देयर ओपिनियन, सो व्हाट कैन आई डू। तो मैं दिखा देता हूं। ओरिजिनली इट एड्रेस मेजर इश्यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देखो यहाँ विकिपीडिया में भी लिखा है, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेड ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। नहीं, ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया था, ए ही ऑप्शन माना गया था, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट, इफ क्वेश्चन रिपीट तो ए आप आंसर कीजिएगा। ओके, हाँ, लेट मी क्लैरिफाई इट। अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता तो आप ए आंसर कीजिएगा, इसलिए कि क्लैट के ऑफिशियल आंसर की में फाइनल आंसर की यही दिया था, ठीक है। सो इफ इट गेट्स रिपीटेड यू हैव टू मार्क ए। व्हाई? हाँ, मैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही बता रहा हूँ, ठीक है। जो क्लैट निकाला था वो ए होगा, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था, ठीक है। सो नाउ तो वही बता रहे थे कि ओरिजिनली इट वाज फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, लेकिन अब तो सब कुछ डिस्कस होता है ना, इट इज डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग। ओके, मैं दिखा दूंगा, अभी आप वेट करो, व्हेन आई डिस्कस अबाउट ब्राजीलियन डिक्लेरेशन। इवन दिल्ली डिक्लेरेशन में तो और डिटेल में वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह सब बात हुई थी, आई स्टिल रिमेंबर। हु इज गोइंग टू होस्ट द G20 समिट, ये भी क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर क्लैट में, तो उस टाइम पर आंसर ब्राजील होता, लेकिन इस टाइम पर जो आंसर है वो साउथ अफ्रीका है। तो ये क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू ए भी, कि हु इज गोइंग टू होस्ट नेक्स्ट ईयर, ठीक है। सो द राइट आंसर इज डी, यस। अच्छा, G20 ट्रॉयका किसको कहते हैं ये बताइए तो। यस, पीपल आर सेइंग डी, वेरी गुड। ट्रॉयका मतलब क्या होता है? TRO, ट्रॉयका मतलब थ्री, मतलब ये होता है करंट प्रेसिडेंट, लास्ट प्रेसिडेंट एंड फ्यूचर प्रेसिडेंट, ठीक है। इस तीनों को मिला करके कहेंगे तो G20 ट्रॉयका। तो जैसे मान लो कि ब्राजील ये करंट प्रेसिडेंट है, इनसे पहले इंडिया था, और इनके बाद साउथ अफ्रीका। सो दिस इज एक्चुअली द ट्रॉयका, ठीक है। लेकिन अब जो ट्रॉयका है, चूंकि अब ब्राजील ने हैंड ओवर कर दिया साउथ अफ्रीका को, तो अब साउथ अफ्रीका अब से प्रेसिडेंट हो जाएगा, मतलब जस्ट बात। तो अब ट्रॉयका ये दो, ये और ये कहलाएंगे ट्रॉयका, दीस थ्री विल बी कंसीडर्ड एज ट्रॉयका फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो आप देख लीजिएगा कि जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू आंसर इट, है ना। सो उसके बाद यूएस विल बी होस्टिंग। तो नेक्स्ट ईयर जो है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में G20 समिट होगी। Can you please tell me when was BRICS formed? 2006 it was formed, first summit 2009, ठीक है। Vaibhav, your answer I have given. Okay, the next is which of the following are not the guest in G20 2024? इस तरह का क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, ठीक है।
कि कौन सा इसमें से गेस्ट नहीं है, एंड आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट बट स्टिल यू शुड बी नोइंग इट. तो 2010 में ब्रेक हो गया था. यस, yes, the right answer actually is D, not C. I don't know why people are saying C. गेस्ट कंट्री मैंने कहा, गेस्ट. सो फिजी को नहीं बुलाया गया था गेस्ट. दीज आर द गेस्ट कंट्रीज. ठीक है, अंगोला, बोलीविया, चिली, कोलंबिया, इजिप्ट, होली सी, मलेशिया, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, नॉर्वे, पैराग्वे, पोर्चुगल, कतर, सिंगापुर. आप देख लीजिएगा एक बार. स्पेन तो अक्सर गेस्ट रहता है, ऑलवेज. ठीक है. व्हाई आई एम सेइंग बिकॉज इसलिए क्वेश्चन आया था. मैं आपको दिखाता हूं. देखो ये क्वेश्चन था, एंड आई बिलीव दैट इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. Invitees to the summit held in 2023. हाँ, those country invite some countries which are not a member but still. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. अच्छा, कोई बच्चा ब्रिक्स के बारे में पूछ रहा है. मैंने ब्रिक्स बार बार बता दिया हूं, तो भी बता देता हूं. ब्रिक पहले बना था 2006 में. फर्स्ट समिट हुआ था 2009 में, और ब्रिक जो है ब्रिक्स बन गया था 2010 में. ठीक है, someone was asking, so I have clarified it. ओके, खैर. तो ये जो है, ये सारे परमानेंट गेस्ट में सिर्फ कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट नहीं बनाया जाता. आईएलओ के ऑफिस होल्डर है डायरेक्टर जनरल को, आईएमएफ के डायरेक्टर जनरल, स्पेन के. देखो स्पेन तो हमें अक्सर चले आते हैं. ठीक है, मतलब ऑलवेज देयर है ना. देन अफ्रीकन डेवलपमेंट न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट. देखो ओईसीडी, यूनाइटेड नेशन के एंटोनियो गुटेरेस प्रेजेंट होते हैं. वर्ल्ड बैंक के अजय बांगा वाज प्रेजेंट. डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ के भी हेड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो इसमें से एक कंट्री है जो परमानेंट इनवाइटी, वो यही है, स्पेन. ये पूछा है ना. Okay. ठीक है. Now the next one is the next question is this. Who is the host of G20 2024? इतना सारा क्वेश्चन लोगों ने लिखा है चैट में. Yes, the right answer is C. Lula de Silva. C is the right answer to this question. ठीक है. तो देखो ये देखो, लूला डे सिल्वा पासिंग ऑन टू अफ्रीकन साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो हैंड्स ओवर G20 प्रेसिडेंसी. ठीक है, आप देख सकते हो साइरिल रामाफोसा इज द प्रेसिडेंट, है ना. तो ये पता होना चाहिए. जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. दिस इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. यस, पीपल हैव आंसर्ड. वेरी गुड. हाँ, काफी सारे लोगों ने आंसर किया. सी. जेवर मिली अर्जेंटीना के, राइट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Please read the question and then answer me. Yes, Mishika, Dal Singh, Ashti, Nandini, Advik. Yes, Washington DC. Yes, Dal Singh Donut. Lakshay, Pavitri, you are right. तो एक्चुअली क्या है, 1999 से चला रहा और इकोनॉमिक इश्यूज पे डिस्कशन होता था. ठीक है, लेकिन 2008 के बाद ये हेड ऑफ द स्टेट्स गवर्नमेंट सब आने लगे. सो द राइट आंसर इज एक्चुअली बी. 2008 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. यस, राशि, मिशिका, अरमान, यू आर राइट. ठीक है, फिर आप देख सकते हो उसमें और भी चीजें आने लगी, है ना. 1999 से फाइनेंस मिनिस्टर और मतलब सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स जाते थे, है ना, जो G20 वगैरह, जो आरबीआई गवर्नर वगैरह. बट बाद में 2008 से खास करके हेड ऑफ द स्टेट जॉर्ज बुश, है ना, आप देख सकते हो. सो दे स्टार्टेड हैविंग दिस एंड नाउ इट इज बिकम. तो इसीलिए 2008 के बाद ये एक्सपैंड कर गया प्लेटफॉर्म. इट इज नॉट लिमिटेड टू इकोनॉमिक्स. इट इज ट्रू दैट ओरिजिनली इट इज फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स पर्पस, but now it has been expanded. Everything is being discussed, है ना. Where is the permanent secretariat of G20? Guys, Saturday को 3 PM पे we will be having a session on COP29, which is actually happening in Baku, Azerbaijan. ये भी बहुत important है because it is happening, and of course they can ask questions from here. COP29 Baku, Azerbaijan. So we'll be meeting you Saturday 3 PM with this session. Please do join. Yes, very good. D is the right answer. It does not have any. There have been proposals. ठीक है. Yes. अगर आप पढ़ोगे तो 2010 में ही प्रेसिडेंट थे फ्रांस के निकोलस सरकोजी ने प्रपोजल दिया था. ठीक है, फिर और भी कई सारे लोगों ने प्रपोजल दिया था, बट अभी तक है नहीं. जैसे साउथ कोरिया ने साइबर सेक्रेटेरिएट वगैरह की बात थी, बट टिल नाउ देयर इज नो सच. सो यू शुड नो इट. डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन.
ठीक है ना। तो ये लोगो है G20 का, और बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट एंड ऑल, और इसमें ऐसे, ठीक है। सो नाउ लेट अस बिगिन विद सम फोटोज, थोड़ा सा फोटो वगैरह देख लीजिए। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि यहाँ पर ना ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी रियो डी जेनेरो 2024 ये भी लॉन्च हुआ, ठीक है। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी वाज लॉन्च। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, हो सकता है पूछ दें कि कौन सा अलायंस लॉन्च हुआ एंड ऑल, सो यू शुड नो इट, है ना। और ये भी फोटो है, दीज आर सम ऑफ द पिक्चर्स ऑफ रियो समिट G20। एंड टुडे 8 PM ये क्लास होगा, प्लीज डू ज्वाइन इट लाइव, दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। लेट्स मूव ऑन टू G20 रियो डी जेनेरोस डिक्लेरेशन। तो चलो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कोई बच्चा पूछा सर काली कॉप और बाकू कॉप में फर्क क्या है? बहुत फर्क है। प्लीज गो एंड वॉच CBD, वो वाला आपने सेशन इसका मतलब नहीं देखा, कॉप 16 वाला। और मैंने एक और बताया था इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल समिट्स, प्लीज गो एंड वॉच इट, आई हैव डिस्कस्ड एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। नामिया अग्रवाल प्लीज गो एंड वॉच, ठीक है, मैंने डिस्कस किया उस सब क्लासेस में। ओके, तो चलो चला जाए, लेट्स बिगिन। क्या क्या बात हुई? So first of all, they talked about challenges and crisis, major global challenges and crisis. तो पहला they talked about sustainable development. तो सबसे पहले तो sustainable development की बात हो रही है, तो first of all let's talk about it. Now please tell me, sustainable development का concept first कौन से रिपोर्ट में आया था? This is a ALET PYQ, ठीक है। सब ओरिजिनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। और SDG जो यूनाइटेड नेशन ने कब सेट किया था और टारगेट कब है? ब्रंटलैंड रिपोर्ट, यस प्लीज शर्मा, मुफ्ती शर्मा, राइट। तो देखो एक कॉन्सेप्ट तो क्लब ऑफ रोम 1972 में दिया गया था, यहाँ भी लिखा था, लेकिन जो रिपोर्ट अगर पूछा जाए तो आंसर होगा ब्रंटलैंड रिपोर्ट, या एलेट का क्वेश्चन आया था तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड सेट किया गया था 2015 में, एंड इट नीड्स टू बी अचीव्ड बाय 2030। हाँ ब्रंटलैंड रिपोर्ट, यस, प्रार्थना, फ्यूचर एनालिसिस, UI धृति, तनिष्का, गुड। हाँ तो ये है, these are 17 sustainable development goals, no poverty, zero hunger, good health, well-being, quality education, gender equality, ये सब सारा देख लेना। these are 17 sustainable development goals, okay। now तो अब इसके बारे में लोगों ने क्या बात की? so they have talked about पूरा इंटायर इसमें SDG बात ही कर रहे हैं, ठीक है। with only 6 years left, चूंकि we are in 2024, तो 6 साल बचा है टारगेट अचीव करने में, because we have only achieved 17% of the SDG target, यानी कम चांस है कि अचीव हो पाएगा 2030 तक। That is what is being talked about, है ना, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, ठीक है। फिर ये इनका थीम है, बिल्डिंग जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट, ठीक है। देन ह्यूमन सफरिंग, एडवर्स इंपैक्ट ऑफ वॉर्स वगैरह की बात की। देखो वॉर्स पीस की तो बात हो ही रही है, UN सिक्योरिटी काउंसिल, UN जनरल असेंबली में आपको दिखा देता हूँ, है ना। दे हैव टॉक्ड अबाउट इट यहाँ पर। Gaza Strip में they talked about that we are in deep concern regarding what is happening in Gaza Strip, escalation in Lebanon, and they talked about UN Security Council Resolution 2735, a blue line, ये सब काम का है, ठीक है। So they are talking about controlling wars, UN Security Council Resolution 2735, please read it, ठीक है। So it is all about actually controlling the war and all, तो इसी सबसे related they are talking about. Second thing ये पूछा था एग्जाम में, the two-state solution is related with what? So Israel and Palestine conflict. So they accept that Israel and Palestine both are independent countries. मतलब not only Israel, they accept that Palestine should also be recognized as a country. तो टू स्टेट सोल्यूशन का ये मतलब होता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि टू स्टेट सोल्यूशन रिसेंटली न्यूज इज रिलेटेड विद व्हाट, ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, ठीक है। एक ब्लू लाइन है, इसको भी पढ़िएगा, विड्रॉल लाइन कहते हैं बिटवीन इजराइल एंड लेबनन एंड गोलन हाइट्स। तो ये पूछ सकते हैं कि ब्लू लाइन रिसेंटली न्यूज इज रिलेटेड विद व्हाट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ना ये इजराइल, ये दिस इज ये बॉर्डर है ना लेबनन इजराइल का, और यहाँ पर दिस वन इज गोलन हाइट्स, तो यहाँ पर ब्लू लाइन बाउंड्री है। तो दिस कैन बी आस्क्ड व्हाट इज ब्लू लाइन एंड ऑल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो जी समिट कॉल्स फॉर मोर एड टू गाजा एंड ऑल। यूक्रेन ने क्रिटिसाइज किया बिकॉज रशिया के रोल को रशिया वर्ड नहीं यूज किया गया है रशिया यूक्रेन वॉर में, सो दैट इज व्हाई दे वर नॉट हैप्पी एंड ऑल। ये भी न्यूज में था, अगर आप देखोगे specifically concerning the war in Ukraine, so they have not used the word Russia, but war in Ukraine they have used it,
recalling our discussion in New Delhi, human suffering and also these things have been done. We condemn terrorism in all its form. ठीक है, so it means it is talking about peace, है ना, वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो रही है. तो कहां से कैसे कह रहे हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए? देखो आपके सामने मैं दिखा दे रहा हूं. द क्वेश्चन वाज लास्ट ईयर ना, आप देख लो. सो दे आर टॉकिंग अबाउट इट, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी. ओके, सो है ना, it is eradicating, reducing hunger, poverty. These are the things being talked about. Okay, then we endorse Rio Declaration on international tax cooperation की बात की. चलो ठीक है, ये ट्रेड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है. ठीक है, so that is what you should be knowing about. ठीक है, एक चीज और है, इसको पढ़िएगा, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग, BEPS, OECD का कॉन्सेप्ट है ये. बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग, दिस इज द वे, एक्चुअली इट्स अ जुगाड़ ऑफ सेविंग द टैक्सेस एंड ऑल. तो उसमें कई बार मिस यूज ऑफ दिस होता है, तो इसको आप पढ़िएगा, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, इसको क्या कहते हैं. ठीक है, सो दिस यू शुड बी नोइंग इट. ठीक है, सो वी एम्फसाइज द रोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल, तीनों चीज की वो बात कर रहे हैं. ठीक है, कि ऑल दीज थ्री नीड्स टू बी बैलेंस्ड टू एंश्योर पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी एंड ऑल. ठीक है, ओके. देन दे आर टॉकिंग अबाउट पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, अगेन एनवायरमेंट की बात हो गई है ना. 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला पार्ट, तो ये वाला वीडियो देख लीजिएगा. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इन दिस वीडियो, सो प्लीज गो एंड वॉच इट. ठीक है, ओके. देन मैंने COP 16, चूंकि अभी कोई बच्चा पूछ रहा था, COP 16 कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी पर भी वीडियो बनाया है, और इसकी वो बात करें, कन्वेंट मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये COP 15 है. COP 15 अंडर CBD, और ये COP 16 अंडर CBD है. तो इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा कन्वेंट मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में बताया है. सो दैट इज आल्सो दे आर टॉकिंग अबाउट. फिर COP 16 जो अभी हुआ, इसके बारे में डिस्कशन है. और ये UNCCD का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ये रियाद में होने जा रहा है दिसंबर में, बट दिस विल नॉट बी इंपॉर्टेंट बिकॉज तब तक आपका एग्जाम हो चुका रहेगा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट. ओके, तो मैंने बहुत हद तक रफ इसमें डिस्कस कर ली, और भी बहुत सारी चीजें थी. ठीक है, तो आपको यू शुड बी नोइंग इट, बट आई हैव डिस्कस्ड दिस मच. नाउ देयर आर सम होमवर्क फॉर यू बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वन, सो आई एम अगेन गिविंग योर होमवर्क. आपको फाइंड आउट करना, अर्थ समिट कौन से ईयर में हुआ था, उसमें 3 फेमस थिंग्स जो निकल के आया था वो क्या था. देन COP, UNFCCC COP विच ईयर में हुआ था, लोकेशन कहाँ है, और क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, ईयर बताना है. ठीक है, हाँ, सऊदी अरब रियाद होस्ट होगा. UNCCD का, UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन की COP होने जा रही है, उसका रियाद में होगा. ठीक है, ओके. G20 सोशल. Any question? Do you have any question? रशिया यूक्रेन वॉर पे हम देखते हैं, बिकॉज आई आल्सो हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, UNCBD, CCD और UNFCCC 92 में. यस, वीर शर्मा. ठीक है, ग्रेट. तो आप नीचे कमेंट कर दोगे आफ्टर द क्लास इज ओवर. देयर लॉट ऑफ डिमांड्स एंड रिक्वेस्ट. ठीक है, कुछ ने कहा रशिया यूक्रेन वॉर, कुछ लोगों ने कहा इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, मैं कोशिश करूंगा. आई कैन नॉट से गारंटी बिकॉज I myself has a lot of restriction in the sense कि I'm very much busy with paid sessions and other classes also. ठीक है, बट आई विल ट्राई कि अगर सैटरडे को तो वो वाली क्लास होगी 3 PM पर, वो इंपॉर्टेंट है. प्लीज डू ज्वाइन दैट 3 PM पर. और टुमारो जो है ना 6 PM पर रिवीजन सीरीज होगा करंट अफेयर्स का, जैसे चला आ रहा है. ठीक है, सो डू ज्वाइन दैट रिवीजन जो मैंने बताया ना. तो ये आप प्लेलिस्ट में जाना, ओके, क्लास की, और विल बी हैविंग सेशन. प्लेलिस्ट में जाना और रिवीजन के लिए वी आर हैविंग. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास. नाउ आई विल बी मीटिंग यू टुमारो एट 6 PM, और ये अभी लाइव क्लास होगी 8 बजे, CLAT 2025 आउटशाला. प्लीज डू ज्वाइन इट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, कुछ सवाल पूछना होगा, तो दे आर एक्चुअली वेरी एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, तो आप उनसे जरूर सवाल पूछिएगा. इट्स बेटर टू ज्वाइन लाइव. सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.